वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी अज असी जो शब्द लैके आए हैं, शब्द है सोई सियाणा सो पतवंता हुक्म लगे जिस मीठा जियो। पंजवें पातशाह जी का उचारिया होया शब्द है। ये शब्द का भाव ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਤੱਤ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ, ਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹੀ ਪਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਔਰ ਪਤਵੰਤਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜਿਉ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੈ ਸਭ ਭਲੀ ਜਾਏ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜਿਉ, ਸਭ ਪਰੋਈ ਇਕਤ ਧਾਗੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਨਸਪਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਰੋਈ ਇਕਤ ਧਾਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि परमात्मा दी चरणी लगे, परमात्मा ओदे ते ही मेहर करदे ने। हुण संगत जी ये साडे वास्ते भी है, ये मनुखां वास्ते भी है, ये जीव जंतुआं दे वास्ते भी है। जदों असीं कहने आ ना कि परमात्मा दे हत्थों, गुरुआं दे हत्थों जिन्ना जीव जंतुआं दा शिकार होया, कई जंतु कई कीड़े ऐदां सी कि परमात्मा ने, गुरुआं ने आप उन्हां दा उद्धार कीता। ते इसलिए परमात्मा साडे गुरु जिन्ना ते ओ मेहरबान होना चाहते सी, जिन्ना ते मेहरबान होए, जिन्ना ने ऐसे कर्म कीते कि वाहिगुरु उन्हां ते प्रसन्न होण, उन्हां दा उद्धार करन, उन्हां नूं ही ये बरकत मिली, उन्हां ते ही ये मेहर वरसी। जिस लाए लए सो चरनी लागे, जिन्हों परमात्मा चुनदा है ना कि ये बंदा मेरी चरनी लगे, ये मेरे नजदीक आए, ओही ओदी चरनी लगदा है, ओही ओदे ओदे ओनू पांदा है, ओदे ओदे नजदीक पहुंचदा है। ऊंद कवल जिस होए प्रगासा। जदों संगत जी ये बाणी च लिखिया है कि साडे अंदर जेड़ा आनंद रूपी जेड़ा एक कवल कमल दा फुल है, जदों आनंद प्राप्त हुंदा है ना, जदों ओ चरम आनंद जो वाहिगुरु नू प्राप्त करन दा आनंद प्राप्त हुंदा ना, ते ओ फिर साडे अंदर एक ना कवल दा फुल खिड़ जांदा है, वो खिड़ाव हो जांदा है। उदों हुंदा है जदों परमात्मा दी मेहर हुंदी है, जदों असीं परमात्मा दा हुक्म मनना शुरू कर दिन्ने आ, जदों दी रजा च रहना शुरू कर दिन्ने आ। अगर जदों असीं ओदी रजा दे रहना शुरू करदे हां, आनंद दी प्राप्ति हुंदी है, उदों ओ कवल खिड़दा है, उदों ओ आनंद रूपी फुल खिड़दा है। उस तो पहला ओ पुट्ठा हुंदा है। ते लिखिया है ऊंद कवल जिस होए प्रगासा, तिन सरम निरंतर डीठा जी, निरंजन डीठा जियो। कि ओ जेड़ा निरंजन जेड़ा वाहिगुरु है ना, ओ जिदे ते प्रसन्न हो जांदा है, ते फिर ओदे अंदर जेड़ा जेड़ा कवल दा फुल, जेड़ा आनंद रूपी कमल दा फुल जेड़ा पुट्ठा होया पिया हुंदा है ना, ओ खिड़ जांदा है, सीधा होके ओदा ओ प्रगास हो जांदा है। मतलब कि ओनू वाहिगुरु दा ओनू भेद पा लैंदा है, ओनू वाहिगुरु दा भेद मिल जांदा है। तेरी महिमा तू है जाने, कि हे वाहिगुरु तेरी महिमा ना ते तू ही जानदा, तेरी वड्याइयां तू ही जान सकदा है। क्योंकि बाणी च भी संगत जी देखो ये आंदा है, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कि उच्चे तो उच्चा तुसी ब्राह्मण ले लो, जिन्ने मर्जी वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, पर सारे मिलके भी अगर वाहिगुरु दी सिफत सलाह करिए ना, तावी ओदी सिफत सलाह ओदी वड्याइयां असी नहीं गा सकदे, असी ओ पूरियां असी ओदियां वड्याइयां जान ही नहीं सकदे। तेरी महिमा तू है जाने, हे वाहिगुरु तेरी महिमा तेरी वड्याई, तू किन्ना दयालु है, तू किन्ना किन्ना मेहरबान है, ओ वाहिगुरु ये तेरियां तू ही जान सकदा है। अपना आप तू आप पछाणे, वाहिगुरु तेरा भेद ते तू ही जान सकदा है, होर कोई तेरा भेद नहीं पा सकदा। वाहिगुरु तू आप ही अपने आप नू पछाण सकदा है। हों बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो। हों बलिहारी, हे वाहिगुरु मैं उन्हां तो बलिहारी जानना है, किन्ना तो संतन तेरे, तेरे संतां तो मैं बलिहारी जानना है। और संगत जी संत कौन हुंदे ने? जिन्हां ने, संत दा मतलब है शांत, जिन्हां ने अपनी इंद्रियां शांत कीतियां हुंदियां ने, जिन्हां ने अपना काम क्रोध लोभ इन्हां दे उत्ते जिन्हां ने काबू पाया हुंदा है, जिन्हां ने इनू ए जेड़े दुष्ट ए विकारां तो ओ जेड़े निर्लेप हो चुके हुंदे ने, जेड़े विकारां तो छुटकारा पा चुके हुंदे ने, ओ हुंदे ने संत। हे वाहिगुरु मैं तेरे संतां तो भी बलिहार जानना है, जिन्हां ने कि ए जेड़े विकारां नू इन्हां ते विजय प्राप्त कर लीती है। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, हे वाहिगुरु तू ते निर्वैर है ही है, तू निर्वैर है ते तेरे संत भी निर्मल ने। निर्मल हुंदा है कि संत जेड़े किसी भी चीज तो
ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ। ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਕਲਮਲ। ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ ਸੋਗ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਜੀਵੈ। ਕਿ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे परमात्मा, जिन्ना ने तेरा नाम ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਸਿਆ ਪ੍ਰੰਪੋ ਢੀਠਾ ਜੀਉ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਉ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 5 ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੱਧੂ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ
ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਾਲਕੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਇੰਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚੀ 'ਚ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਂਦਾ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸੀ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਚਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਣ ਦੇ ਚਾਵ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਦੀਏ ਲਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੌਂਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਕੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਸੱਧੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਰਸਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੀਏ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚ ਦੀਪਕ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸੀ ਪੜੋਸੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਦੀਏ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਾਂਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਚ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ
गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह वास्ते कह रहे ने, कहंदे ने तुहाडा पुत्र हुण दिन ब दिन वड्डा हो रहा है और ओदा प्रताप भी वध रहा है, और ओ ये सारियां चीजां दा ओ एना विरोधियां दा ओ उन्हां नू संकट च उन्हां नू लियाणगे, ओ संकट च पाणगे एना विरोधियां नू। और ये जदों सारे विरोधी इकट्ठे हो जाणगे ना ते एना दियां फिर जड़ां पुट्टियां जाणगियां। ते संगत जी इन्हां नू भी पातशाह दे नाल बाबा अरथमल जी नू भी बड़ा प्रेम हुंदा है। ये जदों सुनदे ने कि पातशाह ने शरीर त्याग देना है ते पुछदे ने पातशाह ये कारण की बने, आप जी ने किवें ये त्याग देना है, शरीर किस तरह त्याग देना है। ते पातशाह दसदे ने, कहंदे एदे बड़े कारण ने। उन्हां ने बादशाह ने दोष लगाया है साडे ते कि असी चोर रखे ने, ओ मसंदा नू चोर कहंदे ने। कहंदे उन्हां ने साडे ते इल्जाम लगाया है, साडे ते दोष लगाया है कि असी अपने पास चोरां नू रखिया है और उन्हां दा बादशाह दा खजाना चोरी करांदे हां। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा दोष उन्होंने ये लगाया है कि खुसरो जदों साडी शरण दे विच आया, असी ओनू अपनी शरण दित्ती, असी ओनू अपनी शरण दे विच रखिया। कहंदे ये भी साडे ते दोष लगांदा है और चंदू बादशाह नू लगातार साडे खिलाफ करी जा रहा है। और फिर उन्होंने क्या कहंदे कि बादशाह ने साडे ऊपर 2 लाख रुपए दा जुर्माना भी लगाया है। ते ये सारी वार्तालाप पातशाह और बाबा अरथमल जी विच हो रही है। और फिर ये भी कहंदे ने, कहंदे धन धन गुरु अमरदास जी दे बचन भी ते सच होने ने। जदों बीबी भानी जी ने उन्हां तो वार मंगिया कि पातशाह गुरगद्दी हुण घर च ही रहनी चाहिदी है, ते पातशाह ने की किया सी कि बीबी भानी चलदे दरिया नू तुसी चलदे दरिया दा तुसी जल रोकिया है, और जे दरिया नू बन दिता जाए ते हड़ ते आएगा ही, संकट ते आणगे ही। ते हुण धन धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे बचन भी ते सच होने ने। ते हुण साडा समय आ गया है। कहंदे कहंदे शरीर ते असी त्यागना ही है, पर एदा जो पाप है, एदा जो कारण है, ए तुर्क बननगे। ते संगत जी ये सब सुन के बाबा अरथमल जी विराग च आ जांदे, कहंदे ने पातशाह तुसी ते सब दा कल्याण करना है, ताडे तो बगैर ते मैं रह भी नहीं सकदा पातशाह, तुसी ते ये सब गल्लां तो निर्लेप हो। पातशाह तुसी शरीर त्याग दोगे ते संगतां ते डोल जाणगियां पातशाह, आप जी दे नाल ही, आप जी दे रहन दे नाल ही सानू लाभ है, आप जी दे रहन दे नाल ही सानू सुख है पातशाह। ते तुसी पातशाह तुसी अपना शरीर ना त्यागो, तुसी अपना शरीर हाली रखो। ते पातशाह कहंदे ने, कहंदे शरीर, कहंदे स्वाल जिन्ने भी वाहेगुरु ने सानू जिन्नी उम्र बख्शी है, कहंदे ओनी ही बख्शी है। कहंदे पर कारण ये बननगे क्योंकि पातशाह दा, क्योंकि धन धन गुरु अमरदास जी दे भी बचन सच होने ने। ते फिर संगत जी एक ही कहंदे ने बाबा अरथमल जी, कहंदे पातशाह तुसी हुक्म दो, मेरा शरीर भी तुहाडे वास्ते ही है पातशाह, तुसी हुक्म दो ते तुहाडे बदले मैं अपना शरीर त्यागण नू तैयार है। ते पातशाह कहंदे ने, कहंदे अरथमल जी आप जी दा प्रेम सानू परवान है, पर तुसी भी ज्यादा देर साडे तो दूर नहीं रहोगे। ये विछोड़ा कुछ ही दिनां दा है, क्योंकि अज तो 40 दिन दे बाद तुसी भी अपना शरीर छड्ड दोगे। और वो ये भी कहंदे ने संगत जी, देखो पातशाह ते जानी जान सी, उन्हां नू पता सी उन्हां दे नाल की वर्तारा वरतना है। उन्हां ने क्या कहंदे ने, साडे शरीर नू बड़े कष्ट आने ने, साडे शरीर नू बहुत कष्ट आने ने। उबलदी देग विच बैठना पैना है, तत्ती तवी ते बैठना पैना है, तत्ती रेता पवानी पैनी है,
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ शरीर त्यागोगे, बड़े सुख नाल शरीर त्यागोगे। ते इसलिए साडे शरीर नू कष्ट बड़ा आना है। ते संगत जी ये सुन के बहुत बेचैन हो जाते ने, विचलित हो जाते ने, ते अखां चों हंझू उन्हां दे आ रहे ने बाबा अर्थमल जी दे, ते कहंदे ने तुसी बैराग ना करो, साडे जान तो बाद, आज तो बाद 40 दिन दे बाद तुसी भी ते सानू आके उत्थे तुसी साडे विच ही मिल जाना है, ते इसलिए ये विछोड़ा ज्यादा दिनां दा नहीं है। ते संगत जी जदों वार्तालाप हो रही हुंदी है ते इन्नी देर नू भाई सद्धू जी आ जांदे ने, कहंदे ने कि लंगर प्रशादा तैयार है, ते सिखां नू छकांदे ने, पातशाह नू छकांदे ने। दर्शना वास्ते सब आई जा रहे ने, जाई जा रहे ने। और संगत जी जेड़ी संगत आ रही है पातशाह वास्ते भेटा लैके आ रही है, और संगत जी उथे भाई सद्धू जी दे घर ते पक्का लंगर ही शुरू हो जाता है, क्योंकि संगत आ रही है, जा रही है, पातशाह कोलों बचन सुन रही है। और संगत जी उस समय ते गुटका साहब नहीं हुंदे सी, तो जो पातशाह बाणी पढ़ दे, बाणी उचार दे, ते ओ सब लिखी जाते ने, सिख लिखी जाते और फिर कंठ करी जा रहे सी। ते संगत जी पातशाह सारियां नू वाहेगुरु दा जाप, वाहेगुरु दा सिमरन करन वास्ते प्रेरित करी जा रहे, सारियां नू आशीर्वाद दे रहे, सारियां नू जिद्दां कि ओ वंडी जा रहे, नाम बाणी पातशाह उथे वंडी जा रहे, सारे अपने प्यारियां नू पातशाह अंतर्मुखी करी जा रहे, निहाल करी जा रहे। ते संगत जी उथे रबाबियां ने भी आना शुरू करता। जदों रबाबियां ने आना शुरू करता ते अमृत वेले कीर्तन भी होना शुरू हो गया, ते सारे सिख एदा आनंद मान रहे सी। पर संगत जी किसे नू नहीं पता कि पातशाह शहीदी देण वास्ते आए ने। ते संगत जी जिस तरह की पातशाह जदों बाहर निकले उथों, जदों शहर च पातशाह जदों विचरण गए, ते जदों जा रहे सी, अगे संगत पिछे संगत जय जयकार हो रही है, उधरों चंदू निकल रहा सी। चंदू देखदा है एक कौन बंदा जा रहा है, ऐना कोई सोचदा है कोई बड़ा अमीर साहूकार है कि इहदे अगे एने बंदे, पिछे एने बंदे, जय जयकार हो रही है, ये कौन जा रहा है। सोचता है कि कोई बड़ा अमीर होएगा, या शायद ये कोई बादशाह दा कोई परिचित होए, या शायद कितों दा राजा होवे जो बादशाह नू मिलन जा रहा है। फिर सोचदा है, कहंदा है बादशाह दा कोई परिचित हुंदा, बादशाह नू दा कोई संबंधी हुंदा, ते मैं ते बादशाह दा खास बंदा है, ते मैनू ते जरूर मिल के जांदा। ये कौन जा रहा है। अपने एक बंदे नू चंदू भेजदा है, जा पता कर ये कौन जा रहा है जिदे नाल एनी संगत है, जिदे अगे एनी संगत है, जिदे पिछे एनी संगत है, और जिथों पातशाह निकलदे सब रुक रुक के उन्हां नू नमस्कार करी जा रहे हैं। चंदू दा बंदा जांदा है, एक सिख नू पुछदा है भई ये कौन जा रहा है। सिख कहंदा है कि साडे सतगुरु कृपालु श्री गुरु हर श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जा रहे ने। संगत जी यही गल आके सेम चंदू दा बंदा, चंदू दा सेवक आके चंदू नू कहंदा है कि सतगुरु कृपालु धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जा रहे ने। ओ जदों गुरु जी दी सिफत सलाह अपने बंदे दे मुख तो सुनदा है, ओनू बड़ा गुस्सा चढ़दा, कहंदा है कि मैं किन्नी कोशिश कर रहा है, कहंदा मेरा मैं ते चिंता दे विच कमजोर होई जा रहा है, और ये देखो गुरु साडे ही देश च आके इन्हां दा प्रताप फैलदा जा रहा है। गुरु साडे देश च आके ये ते विचर रहे ने, ये ते घूम रहे ने, और सारी संगत इन्हां दी जय जयकार कर रही है। वो कहंदा है, कहंदा मैं किन्नी कोशिश कीती इन्हां नू दुख पहुंचाउण दी,
पर मैं ते नाकाम हो गया, मेरी तां किते बस नहीं चलिया। ते फिर कहंदा धिकार है मेरे जीण ते कि मैं ते इन्ना कुछ कीता, मैं तां भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਨੀ नहीं पहुंचा पाया। ये ते फिर खुशी खुशी सब घूमी जा रहे ने। ਉਹਦੇ ਕੋ ਇਹ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं ਹੁੰਦਾ और ਇਹਦੇ को इन्नी हिम्मत भी नहीं हुंदी कि मैं जाके गुरु साहिबान ਨੂੰ मिला। ਤੇ ਸੰਗਤ जी ਉਥੋਂ जल्दी जल्दी ਜਾਂਦਾ है, अपना घोड़ा दौड़ांदा है, सीधा ਜਾਂਦਾ है बादशाह दे कोल। बादशाह ਨੂੰ जाके कहंदा है, कहंदा उत्थे फिर चुगलियां लगानियां शुरू करदा है। जाके कहंदा है कि तुसी ते सद्दिया सी गुरु ਨੂੰ, तुसी ते सद्दा भेजिया सी गुरु ਨੂੰ कि भी जाओ गुरु ਨੂੰ तुसी मेरे कोल लैके आओ। पर गुरु ते देखो, गुरु ते इत्थे खुशी खुशी घूमी जा रहे ने, गुरु ते इत्थे लाहौर पहुंच गए ने, उन्हां दे प्रताप वधी जा रहा है, ਉਹ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮੌਜਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ कि असी उन्हां दे दर्शन करना चाहते हैं, तुसी जाओ और गुरु जी नू साडे पास लैके आओ। संगत जी हुण जिहड़ा वजीर खान है ये गुरु घर दा श्रद्धालु है और गुरु जी ते इहदी बड़ी श्रद्धा है। ये जानदा है पुछदा पुछांदा जांदा है कि गुरु जी कित्थे रुके होए ने। पुछदा पुछांदा जांदा है, गुरु जी दे अगे जदों पहुंचदा है, गुरु जी संगत जी ये पूरी मर्यादा नाल जांदा है, श्रद्धा ते रखदा है गुरु घर दी, पर नौकरी ते संगत जी ये बादशाह दी करदा है, तुर्कां दी करदा है। ते ये वजीर खान जाके पातशाह दे उन्हां नू पातशाह दे चरणां च भेटा रखदा है और पातशाह नू नमस्कार करदा है और पातशाह नू प्रणाम करके पातशाह नू दसदा है, कहंदा पातशाह धन हो आप और धन है आप जी दी बाणी। और फिर पातशाह नू अपने मुख तो खुद दसदा है, कहंदा पातशाह मैनू बड़ा रोग लग्या होया सी जलोदर दा। जलोदर मतलब संगत जी जल उदर, जिदे पेट दे विच पानी भर जांदा है। कहंदा संगत, कहंदा पातशाह कि मैनू ते जलोदर दा रोग सी ते मैं रात दिन तड़पदा रहिंदा सी पातशाह। मैं राती तड़पना, एक दिन एक आप जी दा सिख सुखमनी साहब दा पाठ करदा होया जा रहा सी। जदों सुखमनी साहब पाठ दी आप जी दी बाणी दी आवाज मेरे कन्ना च पई ते मैनू आराम मिलना शुरू हो गया, जिथे कि सारिया वैदां दी दवा दारू फेल हो चुकी सी, किसी भी वैद तो मैनू आराम नहीं आया सी। ते धन हो आप जी दी बाणी। फिर कहंदा है कि जो चंदू है ना, कहंदा जिस काम लिए मैं तुहाडे कोल आया है ना पातशाह, बादशाह ने आप नू बुलाया है। ते कहंदा है वजीर खान कहंदा पातशाह चंदू रात दिन आप जी दी चुगलियां करदा है बादशाह दे कोल, और पातशाह रोज सुन सुन के बादशाह भी आप दे खिलाफ हो गया है। ते फिर संगत जी हुण थोड़ी बादशाह दा भी उन्हें पक्ष रखना सी। कहंदा बादशाह भी आप जी दी वडियाई मानदा है बादशाह। वो कहंदा है गुरु नानक पातशाह दी गद्दी सत्कारयोग है, वो सत्कार करदा है और आप जी दी भी इज्जत करदा है। ते ओने मैनू भेजिया है कि जाके मैं आप जी नू कवां कि बादशाह आप जी दे दर्शन करना चाहता है, ते सो किरपा करो और तुसी बादशाह नू दर्शन दिओ। ते पातशाह कहंदे ने असी ते आए इसी काम वास्ते हैं, जिस समय दी असी उडीक कर रहे सी ओ समय आ पुज्या है। पातशाह पालकी मंगांदे ने,
सद्धू नूं आशीर्वाद दिंदे ने, बाकी उत्थे संगतां नूं आशीर्वाद दिंदे ने, अपने 5 सिखां नूं लैंदे ने और बादशाह नूं मिलन वास्ते पातशाह चाले पा दिंदे ने। और जदों पातशाह तुरदे ने, वजीर खान पहला ही जाके बादशाह नूं इतला कर दिंदा है कि गुरु साहिबान पहुंचण वाले ने, और समझो कि पहुंच ही गए ने। ते जेड़ा बादशाह हुंदा है ना संगत जी, अपने आसन तो भी उच्चा आसन गुरु साहिबान वास्ते लगांदा है अपने दरबार दे विच। जदों चंदू देखदा है कि मेरे आसन तो भी उच्चा आसन गुरु जी दा लगाता है, ओनू बड़ा गुस्सा चढ़दा है, बड़ा ओनू आंदा गुस्सा चढ़दा है कि मैं ते बादशाह नूं दे खिलाफ करी जा रहा, मेरा विरोधी है, और बादशाह ने बड़ा उच्चा आसन लगाता है गुरु साहिबान दे वास्ते। ते संगत जी एनी देर नूं धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह बादशाह दे दरबार च पहुंच जांदे ने। जदों उत्थे उस अपने सिखां दे नाल दरबार च पहुंचदे ने, जिन्ने भी दरबारी हुंदे ने संगत जी, अमीर जेड़े उत्थे सारे उच्चे औहदे वाले हुंदे ने, सारे उठ के पातशाह नूं नमस्कार करदे ने। बादशाह आप भी उठ के पातशाह नूं नमस्कार करदा है और बेनती करदा है कि पातशाह तुसी आसन ग्रहण करो, तुसी अपने आसन ते बैठो। और जदों पातशाह उत्थे जांदे ने, दरबार च ते संगत जी पातशाह शरीरिक रूप नाल ते पहली बार गए हुंदे ने। ते पातशाह ओनू बादशाह नूं पुछदे ने, कहंदे राजी खुशी है, सब ठीक ठाक है? ते बादशाह कहंदा हां जी सब ठीक ठाक है। ते पातशाह अपना आसन ग्रहण कर लैंदे ने। उत्थे धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी आसन ते बैठ जांदे। जदों बैठ जांदे ने, हुण बादशाह सियासी बादशाह ए खिलाफ होया हुंदा है, पर जेडे डिप्लोमैटिक हुंदे ने ना, डिप्लोमैट्स हुंदे ने संगत जी, जेडे उपरों कुछ होर बाहर कुछ होर, ये जाहिर नहीं होण दिंदे कि साडे मनां च की है, उपरों मुंह तो बड़े मिठे हुंदे ने। क्वेश्चन करदा है, प्रश्न रखदा है, कहंदा है तुसी ते बहुत वड्डे पीर हो पातशाह, गुरु जी तुसी ते बड़े वड्डे पीर हो। कहंदे अजकल हिंदुआं और मुसलमानां च ना बड़ा झगड़ा पिया होया है गुरु जी। हिंदू कहंदा है मैं वड्डा हां, मुसलमान कहंदा है मैं वड्डा हां। हिंदू कहंदा है मैं स्वर्ग च जावांगा, मुसलमान कहंदा है मैं जन्नत च जावांगा। ते ए मैनू ना गुरु जी, ए मैनू गल ना समझ नहीं आंदी, तुसी दसो रब नू कौन मिलिया है? रब हिंदुआं दा है कि मुसलमानां दा है? रब कोल कौन पहुंचिया है? हिंदू पहुंचिया है कि मुसलमान पहुंचिया है? ओदे मन च सी कि जे हिंदू कहणगे गुरु जी ते मुसलमान उन्हां दे खिलाफ हो जाणगे, जे गुरु जी कहणगे कि मुसलमान पहुंचिया है, रब नू पाया है मुसलमान ने, ते हिंदू उन्हां दे खिलाफ कर दांगा। ते संगत जी, पर गुरु जी नू कौन हरा सकदा है? धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह नू, परमेश्वर नू कौन हरा सकदा है? परमेश्वर नू कौन फसा सकदा है? ते पातशाह ने, और वो कहंदा है, कहंदा गुरु जी तुसी बड़े वड्डे पीर हो, और तुसी मैनू एहो जिहा उत्तर दवो कि जिहदे नाल मेरी तसल्ली हो जाए कि रब नू किन्ने पाया है। ते धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने जवाब दे विच फिर शब्द उचारिया, केड़ा? कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कहंदे बादशाह सुन, कोई राम राम कह रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई खुदा खुदा बोल रहा है, इक्को ही गल है। क्यों? क्योंकि जो ओ याद ते इक्को परमेश्वर नू कर रहे ने ना, क्योंकि कराण वाला ओ इक्को ही परमेश्वर है। कहंदे ओ बड़ा रहम दिल है। कहंदे पातशाह समझा रहे ने, कहंदे कोई हिंदू तीरथ नहांदे ने,
मुसलमान हज जाते ने, इको ही गल है। हिंदू थाली नाल पूजा करते ने, मुसलमान सीस निभाते ने, इको ही है, कोई फर्क नहीं है। कोई नीला पांदा है वस्त्र ते कोई चिट्टा पांदा है वस्त्र, ਇਹਦੇ ਚ कोई फर्क नहीं है। ते पातशाह कहंदे ने हुण तू ध्यान नाल मेरी गल सुन बादशाह। कहंदे ने ओही बंदा सियाणा है, ओही बंदा ब्रह्म ज्ञानी है, ओही बंदा समझदार है जिन्ने वाहिगुरु दा, जिन्ने प्रभु दा भेद पाया है। और भेद किन्ने पाया है? जेड़ा ओदी हुक्म दे विच राजी रहंदा है। और कहंदे सुन बादशाह, तू इन्हां हिंदुआं दी मुसलमानां दी गल्लां छड्ड, तू रब दी गल कर। कहंदे जेड़े परमेश्वर दी गल्लां कर। कहंदे जेड़े झगड़ा करदे ने ना कि हिंदू दा है ये मुसलमान दा है, ओ ते परमात्मा नूं भी वंड रहे ने। कहंदे परमेश्वर परमेश्वर ही है, परमेश्वर दा कोई धर्म नहीं है। हैरान हो जाता है कि परमेश्वर दा धर्म नहीं है। ते पातशाह ये भी गल क्लीयर करदे ने, कहंदे ने परमात्मा दा कोई हिंदू मुसलमान कोई ये धर्म नहीं है। परमात्मा दा धर्म है प्रेम। जिन्ने ओनू प्रेम कीता ओने ओनू पाया, चाहे ओ हिंदू है, चाहे ओ मुसलमान है, चाहे ओ गरीब है, चाहे कोई अमीर है। परमेश्वर दा इको ही धर्म है, ओ धर्म है प्रेम। धर्म है प्रेम। कहंदे जिन्ने भी ओदा भेद पाया है। और फिर कहंदे तू ते इन्ना सियाणा है, तू ये सारियां गल्लां तू छड्ड, तू ये किहड़ियां कम्मां च फसा होया है। तू परमात्मा दा नाम सिमरन कर और तू ब्रह्म ज्ञानी बन। और ब्रह्म ज्ञानी बन के ही तू ये भेद पा सकदा है। कहंदे और ये भेद की है? कहंदे ये बड़ी विस्तार दियां गल्लां ने। कहंदे ने ये तीन गल्लां ने जेड़ा कि विस्तार बहुत समय लगेगा। कि केड़ियां तीन चीजां? कहंदे ने उसदा हुक्म मनना, परमात्मा दा हुक्म मनना, ओदी रजा विच राजी रहना, और तीसरा नाम जपना। कहंदे तू नाम जप, तू ब्रह्म ज्ञानी बन, और फिर तू परमात्मा दा भेद पा। कहंदे तू सियाणा, तू केड़ियां कम्मां च, तू केड़ियां गल्लां दे विच फसिया होया है। ते संगत जी ओ सोचदा है, कहंदा मैं ते इन्हां नूं फसा रिहा सी, मैं ते हिंदुआं मुसलमानां नूं एक दूजे दे खिलाफ कर रिहा सी, इन्हां ने ते दोनां नूं इकट्ठे कर दिता, इन्हां ने ते दोनां नूं इकट्ठे कर दिता। पातशाह की कहंदे ने? कहंदे देख साडा कोई असी ते जेड़ा सानू प्रेम करदा है। कहंदे सानू ते हिंदू भी प्रेम करदे ने, सानू मुसलमान भी प्रेम करदे ने। कहंदे ने परमात्मा दा कोई धर्म नहीं है, असी ते सारियां नू अपनी शरण च लैने आ। ते संगत जी जदों ये गल्लां सुनदा है, वो सोचदा है, कहंदा मेरी ते चाल फेल हो गई। इन्नी देर नू संगत जी सूरज डुब जाता है। और जदों सूरज डुब जाता है ते बादशाह कहंदा है हुण दरबार, हुण ये सभा भंग हुंदी है। क्योंकि बादशाह शाम दे टाइम अपनी ओ भंग कर दिंदे सभा। ते कहंदे हुण ये सभा भंग हुंदी है। ते बादशाह आप उठ जाता है, पातशाह भी जाण वास्ते उठ जाते ने। पर इन्नी देर नू चंदू पहुंच जाता है। जिस तरह ही पातशाह उठ के बाहर आते ने, चंदू देखदा है कि बादशाह ते जा रहा है अपने महलां वाल, ते फटाफट उहदे कोल पहुंच जाता है। कहंदे तुसी की कर रहे हो? ओ फिर पातशाह दे खिलाफ गल्लां कर रहा। ओ सोचदा है कि बादशाह ना ए गुरु साहिबान दी गल्लां च आ गए, ए किते क्रोध इन्हां दा खत्म ना हो जाए। ओ फिर ओही चुगलियां, ओही जिहड़ियां गल्लां बार बार रिपीट करी जा रहा ताकि बादशाह नू क्रोध आ जाए। कहंदा तुसी की गल्लां कर रहे हो? ओ ते जा रहे ने, पर तुसी ना न्याय करो, तुसी न्याय करो। उन्होंने जुर्माना भी नहीं भरिया, न्याय करो।
और कहते कहते जे कोई उन्हां दी सिफारिश करन भी आएगा ना ते तुसी उन्हां दी मननी नहीं है। और साडा देश ना ताई साडे देशवासी साडे लोग ताई खुश होणगे जदों तुसी उन्हां नू दंड दोगे। ते गुरु जी नू ते दंड मिलना चाहिए, उन्हां को जुर्माना भी लवो ते बाद ते तुसी ना चुप तुसी जाओ और गल्लां करी जा रहा बादशाह नू कहंदा तुसी जाओ कश्मीर वल, कश्मीर तो बाद दिल्ली जाओ क्योंकि बादशाह दा प्लान हुंदा है कि उन्हें जाना हुंदा है। चंदू कहंदा है गल्लां कर कर नू बादशाह नू अपने फेवर च ले लैंदा है कि तुसी कश्मीर वल चले जाओ, मैं पातशाह नू मैं गुरु जी नू अपने घर लै जांगा, खूब इन्हां दी सेवा भी करांगा और इन्हां को ना जुर्माना जिहड़ा 2 लाख रुपया लेना ना ते किसी तरह मैं इन्हां को ना पैसे भी कढवा लवांगा। और गल्लां कर करके बादशाह को हाँ करवा लैंदा है। ते संगत जी फिर चंदू लै जांदा है पातशाह नू अपनी हवेली वाला, अपने अपने सैनिकां नू कहंदा है, सेवकां नू कहंदा है कि गुरु जी नू हवेली वाल लैके चलो। और पातशाह अपने सिखां दे नाल जांदे ने ओदे हवेली दे विच, जिथे कि संगत जी मैं समय देख रही हां, समय हो रहा है, बस 4 लाइनां होर। उत्थे जाके ओदी बड़ी वड्डी हवेली हुंदी है। ड्योड़ी दे विच संगत जी जो ब्रह्म ज्ञानी पातशाह दे नाल 5 सिख हुंदे ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਸੋਟੇ ਆਪਣੇ ਬਰਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਰਵੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 24 घंटे का पहरा इन्हां ते रवे और कोई भी इन्हां नू आके मिले ना, कोई भी सिख इन्हां नू आके ना मिले। और जेड़े पालकी लैके आए हुंदे ने उन्हां नू कह दिंदा तुसी हवेली तो बाहर जाओ, तुहाडा इत्थे हुण कुछ कम नहीं है। ते संगत जी ओ पातशाह नू अपने उत्थे कैद कर लैंदा है, सिखां नू भी ड्योड़ी च ही रखदा है। ते इस तो बाद वो खुश हो जाता है कि जो मैं चाहता सी ना हुण मेरे मन दी हो गई है, हुण मैं अपना जो करना चाहता है हुण मैं अपना बदला आप लवांगा। ते संगत जी एनी जी सेवा प्रवान करना, इस तो अगे असी कंटिन्यू करांगे साखी नेक्स्ट सैटरडे। ते संगत जी होइयां भुलां दी खिमा कर देना। आओ हुण असी शब्द पढ़दे हां संगत जी। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। हुक्म लगे जिस मीठा जियो, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। हुक्म लगे जिस मीठा जियो। सोई करना जे आप कराए, सोई करना जे आप कराए। जेते रखे सा
लाए, सोई सियाणा सो पतवंता। हुक्म लगे जिस मीठा जियो, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। सब परोई इकत तागे, सब परोई इकत तागे, जिस लाए लय सो चरणी लागे, जिस लाए लय सो चरणी लागे। ओंदे कमले जिस होए प्रकाशा, ओंदे कमले जिस होए प्रकाशा, तिन सर्व निरंजन दीठा जियो, तिन सर्व निरंजन दीठा जियो, तिन सर्व निरंजन दीठा जियो। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। तेरी महिमा तू है जाने, तेरी महिमा तू है जाने, अपना आप तू आप जाने, अपना आप तू आप जाने। हों बलिहारी संतन तेरे, हों बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो। सोई सियाणा सो पतवंता, सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे सब उतरे कलमल, जिन देखे सब उतरे कलमल। नानक नाम त्याए त्याए जीवे, नानक नाम त्याए त्याए जीवे, विद से ब्रह्म को तीठा जियो, विद से ब्रह्म को तीठा जियो, विद से ब्रह्म को तीठा जियो। सोई सियाणा सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। सोई सियाणा सो पतवंता,
जिस हुक्म लगे, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, जी का खालसा, वाहिगुरु जी भुला की चुका जी फतेह क्षमा जी। कर देना संगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, निहाल 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 की तरह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी इसे तरह चढ़ती कला। वाहिगुरु जी का खालसा